Very good morning, students. I am Murthy, your history teacher, going to teach you theme 3, an empire across 3 continents. In this theme or in this lesson, we will read about the Roman Empire, that is termed as the early empire. Today, our topic is the early empire. Means in it, we will read about the administrative system of Roman Empire. Clear? The structure of Roman Empire. Before going to start my chapter, I want to tell you that Roman Empire was a republic empire. It is mentioned here. It was a republic. You will ask what's the meaning of republic? It means the matter of public. So let me explain first. The republic was the name for a regime in which the reality of power lay with the Senate, a body dominated by a small group of wealthy families who formed the nobility. Means a republic means the whole power of empire lying in the hands of Senate. And you will ask, what is Senate? It is a group or organization, a small group of wealthy families. Means it is a small group of wealthy persons or families who formed the nobility. Means they were termed as nobility. Those who were the officers of the king, relatives of the king, support the king to run the administration. They are known as nobility. Clear, bete? In practice, it is mentioned here, in practice, the republic represented the government of nobility. Means, what is the republic? It is the form of government. Republic the represented the government of nobility exercised through the body called the Senate. मीन जो अपनी शक्ति की ये बरतों करते थे एक ग्रुप के थ्रू करते थे जिसको सेनेट कहते थे. द रिपब्लिक लास्टेड फ्रॉम 509 BCE to 27 BC. 27 BCE ने इसको खत्म कर दिया था सेनेट को. किसने? अगस्टस. क्लियर मीन ये इतनी पुरानी बॉडी है रोम. आपको पता है 509 के बाद 508 आएगा. 509 508 बैकवर्ड काउंटिंग 507 506 505 ऐसे में जाके 27 BCE में इसको अगस्त ने खत्म कर दिया. ऐसे 27 BC के बाद मीन जब 0 आया उसके बाद 1 शुरू हो गया. अब हम फॉरवर्ड काउंटिंग करते हैं. 1 2 3 4 5 6 ये कॉमन ही है. क्लियर? यीशु क्रिस्ट का जब जन्म हुआ. आई थिंक दिस इज क्लियर. द रिपब्लिक लास्टेड फ्रॉम 509 BC to 27 BCE when it was overthrown by Octavian. Means earlier the name of Augustus was Octavian. Octavian, and he was the adopted son of Julius Caesar. Octavian कौन था? Adopted son of Julius Caesar. And you will ask who was Julius Caesar? Julius Caesar was the emperor of Rome. वो रोम का राजा था. He was very brave, having military powers. उसके अंदर जो मिलिट्री में स्किल्स होते हैं वो सभी थे. वो बहुत तगड़ा योद्धा था. क्लियर? तो ये ऑक्टेवियन कौन था? अडॉप्टेड सन ऑफ जूलियस.
सीजर। क्लियर? बहुत ही अच्छा जोधा हुआ ये रोमन एम्पायर में। और इसने जो बेटा अडॉप्ट किया था उसका नेम ऑक्टेवियन था। बाद में उसने अपना नेम चेंज कर लिया जब वो गद्दी पे बैठा। क्या नेम रखा? अगस्टस। इसको अगस्टस के नाम से जाना जाता है। इट्स अ वेरी फेमस पीरियड इन यूरोपियन हिस्ट्री एंड रोमन हिस्ट्री। बहुत अच्छे तरीके से अगस्टस ने राज किया। उस समय शांति रही, बहुत सी बिल्डिंग बनी, बहुत सा लिटरेचर लिखा। मीन इसकी एज को, अगस्टस एज को पीसफुल एज कहा जाता है। क्लियर? जिस समय इसने राज किया। हु लेटर चेंज नेम टू अगस्टस। मेंबरशिप ऑफ द सेनेट वाज फॉर लाइफ। मीन अगर आप सेनेट के मेंबर हो तो आपकी जो मेंबरशिप है फॉर लाइफ है, जब तक आप रहोगे आप उसके मेंबर हो सेनेट। क्लियर? एंड वेल्थ एंड ऑफिस होल्डिंग काउंट फॉर मोर देन बर्थ। आपको लाइफ के लिए पूरी मेंबरशिप मिलेगी सेनेट की। मुफ्त में बहुत ज़्यादा मात्रा में वेल्थ मिलेगा, धन मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ सैलरी। ये भी मुफ्त का था। और आप ऑफिस होल्डिंग करोगे, चाहे आपके अंदर तो ये भी फीचर्स थी सेनेट की। सेनेट डोमिनेट कर रहे थे रोमन एम्पायर को, सेनेट लीड कर रहे थे रोमन एम्पायर, राज कर रहे थे, वो अपनी मर्जी से डिसीजन लेते थे। चलिए, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ wealthy peoples termed as senate and it holds all the powers of roman empire. I think this is clear what I have told you. So let me explain my topic. The roman empire can broadly be divided into two parts. Keep in mind, roman empire or roman empire is divided in two parts. One is early and second is late empire. Clear? Late empire, early empire and late empire. Today I am going to teach you about early empire, its introduction, its working phenomena, its people, occupation. Clear? Into two parts, early and late, divided by the 3rd century. Means this division took place in 3rd century as sort of historical watershed between them. In other words, the whole period down to the main part of the 3rd century can be called the early empire. Means from starting to 3rd century, the period is known as early empire, or empire is known as early empire. And after 3rd century it is known as late empire. Late empire. Better, it is clear? The whole period down to the main part of the 3rd century can be called the early empire. 3rd century तक हम इसको early empire कहते हैं, और उसके बाद and the period after that is known as late empire. So this is the division of the Roman Empire that was done in 3rd century. A major difference between the two superpowers and their respective empires was that Roman Empire was culturally much more diverse than that of Iran. We know there are two superpowers. One is Roman Empire and second is Empire of Iran or Irani Empire. And both were rivals. इनकी आपस में दुश्मनी थी, ये मैंने आपको पहले ही बताया। क्लियर? बट इट्स कल्चर इज मोर डाइवर्स देन दैट। यहाँ इसके कल्चर के अंदर बहुत सी डाइवर्सिटीज पाई गई। क्लियर? लेकिन यहाँ ईरान के अंदर कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं था, कोई डाइवर्सिटीज नहीं थी। मीन यहाँ सिमिलरिटीज थी, सेम कल्चर था सभी लोगों का। दिस इज द बिग डिफरेंस बिटवीन बोथ द एम्पायर्स, बिटवीन बोथ द सुपर पावर्स। इट इज क्लियर बेटे? इसका कल्चर डाइवर्स था, इसका कल्चर एक जैसा ही था, कोई डाइवर्सिटी नहीं पाई जाती। सो what we have read, a major difference between the two superpowers and their respective empires was that Roman Empire was culturally much more diverse than that of Iran.
The Parithans and later the Sasans, the dynasty that ruled Iran in this period, ruled over a population that was largely ईरानी। मैंने बताया दो जो डायनेस्टीज हुई हैं, दो मेन वंश हुए हैं ईरान के, एक तो था PARTHINS प्रतिहांस, सेकंड है ससांस SASANIANS ससान। दोनों डायनेस्टीज ने जो राज किया है, रूल किया है, वो ओवर पॉपुलेशन दैट वाज लार्जली ईरानी, एक ऐसी पॉपुलेशन के ऊपर राज किया जो क्या थी, ईरानी थी। मीन सेम कल्चर था जिनका, इनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं था। ईरानियों के ऊपर राज किया इन दोनों डायनेस्टीज ने, जो ईरानी एम्पायर की हम बात कर रहे हैं। इन देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन पीपल in the form of their culture, religion, language. Clear, Viti? The Roman Empire, by contrast, was a mosaic of territories and cultures. But Roman Empire was a Mosaic. It means pattern. That is different from one another. तो ये किसका पैटर्न था, मैसेक ऑफ टेरिटरीज एंड कल्चर्स। यहाँ जो लैंड है वो भी डिफरेंट डिफरेंट रही है और कल्चर्स भी डिफरेंट रहे हैं। दैट वर चीफली बाउंड टुगेदर बाय कॉमन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन इन डिफरेंट कल्चर्स को, रीजन को, जो डिफरेंसेस एंड डाइवर्सिटीज को किस चीज ने बांध के रखा, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। एक गवर्नमेंट ही थी जिसने इतनी डाइवर्सिटी के बावजूद भी इनको एक रखा। क्लियर? गवर्नमेंट सिस्टम। मैनी लैंग्वेज were spoken in the empire, but for the purpose of administration, Latin and Greek were the most widely used. I have already described that many languages were spoken in the empire, in Roman Empire, but for administration purpose, for rules and regulations, for norms, they used only and only the Latin and Greek. Means two languages were used for office purpose. Indeed, the only language. These were the only two languages which are used for day-to-day administrative work in Roman Empire. The upper classes of the East spoke and wrote in Greek. Means in East, which language was spoken by the people? That was Greek. And in the West, people speak Latin. In West Roman Empire, which language was used by the people? Latin. And in Eastern Roman Empire, which language was used for administrative purpose? That was Greek. Is it clear, Betty? And the boundaries between these broad language areas ran somewhere across the middle of the Mediterranean. Between the African province of Tripolitans and Crescenca. All those who lived in the empire were subjects of a single ruler. But the Roman Empire is guided or ruled by a single ruler. A single ruler who took all the decisions. All the powers are lying in the hand of a single ruler. Clear? The emperor, regardless of where they lived and what language they spoke. Clear? No doubt, people are living in west or east, and their language is different, their culture is different, but they had to follow the rules which are framed by a single ruler. Clear? Better maintain silence. Maintain silence, please. The reason established by Augustus.
इसके ऊपर अगस्टस ने रूल किया, उस रिज्म की हम बात करेंगे। द रिज्म established the kingdom established by Augustus, the first emperor in 27 BC was called the Principate। मीन जो अगस्टस ने अपना राज स्थापित किया, दैट इज टर्म्ड एज ए प्रिंसिपेट, उसका नेम प्रिंसिपेट था। Although Augustus was the sole ruler and the only real source of authority, मीन जो राज है वो सिर्फ अगस्टस के द्वारा किया जाता था। मीन ही वॉज द सोर्स ऑफ ऑल द पावर्स, पूरी की पूरी शक्ति अगस्टस के पास थी। He was the real source of authority. The fiction was kept alive that he was actually only the leading citizen, not the absolute ruler। तो उसके बारे में लिटरेचर में ये भी लिखा गया है, ये भी फिक्शंस हैं, लिटरेचर जो है अनट्रू हो सकता है, ये ट्रू भी हो सकता है कि वो एक्चुअली लीडिंग सिटीजन था, वो लोगों को लीड कर रहा था, लेकिन वो एब्सोल्यूट नहीं था, मनमानी नहीं करता था। क्लियर? मीन ही वाज अ गुड किंग, वो अच्छा राजा है, ऐसा राजा जो अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरह प्रेम करता है। क्लियर? उसकी ये बात की गई है, लेकिन वो मनमानी नहीं करता था। ये नहीं था कि किसी को जिसको दंड देना है अपनी मर्जी से दे दिया, किसी को मौत के घाट उतारना, ऐसा कुछ नहीं था। मीन ही वॉज नॉट एब्सोल्यूट। आप समझते हो ना अर्थ, एब्सोल्यूट का अर्थ क्या होता है कि किसी के साथ वो बुरा सलूक नहीं करता था, एक पिता की तरह अपनी प्रजा को वो प्रेम करता था, अपनी प्रजा का, अपने पीपल का, अपने लोगों का वो ध्यान रखता था। बेटी क्लियर? क्योंकि पूरी की पूरी जो पावर है उसके हाथों में थी। जैसे औरंगजेब ने लोगों को सताया, अपनी मनमर्जी की, सिखों को और हिंदुओं को बड़ा परेशान किया कि आप रिलीजन चेंज कर लो, ऐसा उसने कुछ नहीं किया। जस्ट ही गाइडेड हिज पीपल इन अ राइट पाथ। क्लियर? सही तरीके से वो अपने लोगों को गाइड कर रहा है। दिस वॉज डन आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द सेनेट। क्लियर? द बॉडी विच हैड कंट्रोल्ड रोमन अर्लियर, रोम अर्लियर। मैं आपको बता रही हूँ कि ये वो सेनेट लोगों की, नो डाउट उसने सेनेट खत्म कर दिया था जो पहले रोम को चला रहे थे, रोम के ऊपर राज कर रहे थे, लेकिन फिर भी उसने उनकी रिस्पेक्ट को कंटिन्यू रखा, उनके साथ बुरी नीति नहीं अपनाई, उनको परेशान नहीं किया, उनको तंग नहीं किया। ये क्या थी? रिस्पेक्ट फॉर द सेनेट थी। इन द डेज व्हेन इट वाज अ रिपब्लिक, ये देखो बताया हुआ है कि जब वो रिपब्लिक था। पहले तो आपको ये क्लियर हो गया कि जो अगस्टस ने जो फर्स्ट एम्परर बना 27 BC में, उसने जो राज स्थापित किया उसको क्या कहा जाता है? प्रिंस, PRINCI, प्रिंसपेट। और ये कैसा राजा था? एक लीडिंग सिटीजन था वो, उसकी फीचर है ये लीडिंग सिटीजन, लीड करने वाला अच्छा लीडर था। ही वॉज नॉट एब्सोल्यूट, वो एब्सोल्यूट नहीं था, मनमानी नहीं करता था, एब्सोल्यूट राजा नहीं था, किसी को परेशान नहीं करता था। और उसने क्या खत्म कर दिया था? मैंने बताया कि सेनेट को। क्लियर? शक्ति उसके हाथों में थी, बट ही रिस्पेक्टेड द पीपल हु वर द मेंबर्स ऑफ सेनेट। जो सेनेट के मेंबर थे उनकी वो रिस्पेक्ट करता था, क्योंकि सदियों से उन्होंने रोम के ऊपर राज किया था। द सेनेट हैड एग्जिस्टेड इन रोम फॉर सेंचुरी, ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जो सेनेट है सदियों से रोम के ऊपर राज कर रहा था। क्लियर? मीन पहले रोम को कौन चला रहा था? पहले रोम का राज प्रबंध कौन कर रहा था? सेनेट। एंड हैड बीन एंड remained a body representing the aristocracy, बाद में भी ये एरिस्टोक्रेसी के रूप में रहा। मीन एरिस्टोक्रेसी क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल हु आर वेल्दी, रिच, पावरफुल। क्लियर? दैट इज द वेल्दीएस्ट फैमिलीज ऑफ रोम। ये देखो, ये वेल्दीएस्ट फैमिलीज ऑफ रोमन थी, रोम की अमीर फैमिलियां थी ये। एंड लेटर इटालियन डिसेंट, बाद में ये इनका जन्म जो इटालियन डिसेंट का था वो थे मेनली लैंड ओनर्स, ये लैंड ओनर्स थे,
इनके पास ज्यादा लैंड थी। क्लियर? मोस्ट ऑफ द रोमन हिस्ट्री दैट सर्वाइव इन ग्रीक एंड लैटिन वर रिटन बाय पीपल फ्रॉम अ सेनेटरियल बैकग्राउंड। लेकिन याद रखना, जितनी हमें रोमन की हिस्ट्री मिली है बेटे, जो हमें रोमन हिस्ट्री मिली है, टेक्स्ट मिली हैं, ये सभी की सभी टेक्स्ट किसने लिखी हैं? those by those people who are the members of senate, मीन जिनकी बैकग्राउंड, जिनका या तो फादर या ब्रदर कोई भी सेनेट का मेंबर रहा है या फिर वो खुद सेनेट का मेंबर रहा है, उनको हम क्या कहेंगे? सेनेटरियल बैकग्राउंड। उन व्यक्तियों ने लिखी है, तो नेचुरली इन्होंने पक्षपात किया होगा। मीन दे हैव नॉट रिटन द टेक्स्ट impartially. Definitely they will write these texts in a partial way. उन्होंने राजा को बुरा कहा होगा, या आर्मी को बुरा कहा होगा, या लोगों को बुरा कहा होगा, क्योंकि वो तो अपने फायदे की बात करेंगे ना। तो ये आपको क्लियर हो गया ना कि वो बिना पक्षपात के नहीं है, डाउटफुल है उनका जो लिखा हुआ है कि ये सही हो सकता है या गलत भी हो सकता है। क्योंकि अगर मैं लिखना शुरू कर दूंगी तो नेचुरली मैं अपने बारे में अच्छा अच्छा लिखूंगी, और जो मेरे विरोधी हैं उनके बारे में बुरा लिखूंगी। इट्स ह्यूमन नेचर, ऐसे ही उन्होंने किया। फ्रॉम दीज इट इज क्लियर दैट, तो इस बात से क्या होता है, हमें क्लियर होता है, इट इज क्लियर दैट एम्परर्स वर जज्ड बाय हाउ दे बिहेव टुवर्ड्स द सेनेट। मीन किसी राजा के बारे में जो वो लिखते थे, वो उसका सेनेट के प्रति क्या बिहेवियर है उसके हिसाब से लिखते थे। अगर वो सेनेट की रिस्पेक्ट कर रहा है तो नेचुरली उस राजा के बारे में अच्छा लिखेंगे। अगर कोई बादशाह सेनेट के बारे में गलत बोल रहा है, उनकी पावर पर चेक कर रहा है, उनको टैक्स देने के लिए मजबूर कर रहा है, नेचुरली वो दे विल क्रिटिसाइज दैट वन एम्परर और किंग, उसकी वो निंदा करेंगे। द वर्स्ट एम्परर्स वर दोज हु वर हॉस्टाइल टू द सेनेटेरियल क्लास। ये देखो, सबसे बुरे राजा किनको कहा गया है? जो इस सेनेट को नफरत करते थे, सेनेट क्लास को नफरत करते थे, सेनेट मेंबर्स को नफरत करते थे। बिहेविंग विद सस्पिशन और ब्रुटलिटी एंड वायलेंस, उन्होंने इनके ऊपर शक किया या इनके ऊपर कोई हिंसक कार्रवाई की तो उनके बारे में इन मेंबरों ने बुरा लिखा। मैनी सेनेट्स यार्न टू गो बैक टू द डेज ऑफ रिपब्लिक। बहुत से सेनेट्स ऐसे हुए हैं, सेनेट के जो मेंबर थे, जो पुराने दिनों को, रिपब्लिक को याद करते हैं। नेचुरली जब हम अच्छी जिंदगी जीते हैं जिस पीरियड में, तो हम उन दिनों को याद करते हैं। जैसे आजकल आप मेरी स्कूल को याद करते होंगे, मैं तो बहुत याद करती हूँ कोविड से पहले वाला समय कि कितना अच्छा था। हम स्कूल आते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, कॉपी चेक होती थी, टेस्ट होते थे, everything was okay. Now it is a boring time, it's a very difficult time। ना तो बच्चों की अच्छी से स्टडी हो रही है, ना ही बच्चों को मजा आ रहा है, ना ही टीचरों को मजा आ रहा है। क्लियर? तो ये कोविड की वर्स्ट स्थिति है जिसने हमारा सिस्टम को तहस नहस कर दिया। सेम वो सेनेट मेंबर्स भी पुराने दिनों को, रिपब्लिक को याद करते हैं, बट मोस्ट मस्ट हैव रियलाइज दैट दिस वाज इम्पॉसिबल। लेकिन उनको पता चल गया था अब पुराने दिन वापस नहीं आ सकते, क्योंकि अगस्टस ने सेनेट को जो खत्म कर दिया था। हाँ जी बेटे, नेक्स्ट टू द एम्परर एंड सेनेट, हमने दो जो हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस पढ़े हैं रोमन एम्पायर के। एक तो खुद एम्परर, राजा, जो बहुत ही पावरफुल था रोम में, जिसके पास पूरी शक्तियां थी। दूसरा हमने पढ़ा है सेनेट, दैट वाज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वेल्दी फैमिलीज। क्लियर? और तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो है आर्मी। ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स रोमन एम्पायर में बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एम्परर, सेनेट एंड आर्मी। सो द अदर ये इंस्टीट्यूशन आपको पता चल गया। एम्परर इंस्टीट्यूशन जो राजा खुद शक्तियों का मालिक था, सेनेट जो राजा को एडवाइज करते थे, राजा के रिप्रेजेंटेटिव थे, डोमिनेट क्लास थी, वेल्दी क्लास थी। क्लियर? थर्ड है जो आर्मी। किसी भी राज को शक्तिशाली बनाने के लिए वी नीड आर्मी। इंडिया में भी बहुत बड़ी आर्मी है। क्लियर? तो ऐसे में आर्मी का होना बहुत जरूरी होता है। तो लेट मी एक्सप्लेन द एलिमेंट
key element, key institution, that is army. Next to the emperor and the senate, the other key institution of imperial rule was the army. ये देखो वो कौन सा था एलिमेंट, वो थी आर्मी. अनलाइक द आर्मी ऑफ इट्स राइवल इन द पर्शियन एम्पायर. अगर हम पर्शियन एम्पायर की बात करें, मीन ईरान के एम्पायर की बात करें, तो वहां जो आर्मी होती थी वो कौन सी आर्मी थी बेटे, कंस्पिरेटिव, CONSCRIPTED. अब आप पूछोगे इसका अर्थ क्या है, लेट मी एक्सप्लेन. अ कंस्पिरेटिव आर्मी इज वन विच इज फोर्सफुली रिक्रूटेड. इसको जबरदस्ती रिक्रूट करते हैं. व्यक्ति का मन नहीं होता आर्मी में जाने का, लेकिन उसको जबरदस्ती रिक्रूट कर लिया जाता है, भर्ती कर लिया जाता है. जैसे कॉलोनियल पीरियड में हुआ था भारत में, अंग्रेजों ने जबरदस्ती फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान बहुत से भारतीय किसानों को, पंजाब के लड़कों को रिक्रूट कर लिया था. उसको फोर्सफुल रिक्रूटमेंट कहते थे. और ये भी फोर्सफुल रिक्रूटमेंट है, इसका नेम मैंने बताया आपको कंस्पिरेटेड है. तो क्या किया जाता था बेटे, उनको जबरदस्ती रिक्रूट कर लेते थे, भर्ती कर लेते थे फौज में. रिक्रूटेड. मिलिट्री सर्विस इज कंपल्सरी फॉर सर्टेन ग्रुप्स और कैटेगरीज ऑफ द पॉपुलेशन. जैसे हिटलर ने किया था, जो जंगबंद थे, 18 साल के चिल्ड्रन थे, बॉयज थे, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी स्कूल के दौरान ही मिलिट्री स्किल्स की. फिर उनको 3 साल के लिए मिलिट्री में सर्विस करना कंपल्सरी था. सेम ऐसे ही ईरान में या पर्शियन एम्पायर में क्या था कि वहां कंपल्सरी था फॉर सर्टेन ग्रुप्स और कैटेगरीज ऑफ द पॉपुलेशन टू डू सर्विस इन आर्मी, एंड दैट इज टर्म्ड एज कंस्क्रिप्टेड. क्लियर. तो उसको कौन सी आर्मी कहा जाता है, कंस्क्रिप्टेड. And whenever we are recruiting anyone forcefully, definitely he will not give his 100%. अगर हम जबरदस्ती किसी से कोई काम करवाते हैं तो हमें 100% रिजल्ट नहीं मिलता. क्लियर. अगर आपने 100% लेना है तो वो मन से होना चाहिए, फिर आपकी इच्छा के अनुसार होना चाहिए, जिसकी वजह से उनकी आर्मी, ईरानियों की आर्मी या हम कहें पर्शियन आर्मी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी. बट ऑन द अदर हैंड द रोमन्स की आर्मी हम पढ़ेंगे. द रोमन्स हैड अ पेड प्रोफेशनल आर्मी वेयर सोल्जर हैड टू पुट इन अ मिनिमम ऑफ 25 years ऑफ सर्विस. रोमन में क्या था, जैसे इंडिया में है, प्रोफेशनल आर्मी थी. एज ए प्रोफेशन आप ज्वाइन कर सकते थे, जिसके बदले में आपको पे मिलती थी. क्लियर. और आपकी सर्विस जो ज्यादा से ज्यादा, मिनिमम जो आप दे सकते हो 25 साल आपने सर्विस करनी थी, मैक्सिमम की कोई हद नहीं थी. क्लियर. तो 25 साल जो हैं आपके वो रिक्वायर्ड थे, मिनिमम थी. क्लियर. Indeed, the existence of paid army was distinct feature of the Roman Empire. अब मैं टीचर हूँ, मुझे इट्स माय प्रोफेशन, पे किया जाता है, तो डेफिनेटली आई एम डूइंग माय बेस्ट, मैं अपना अच्छा कर रही हूँ. अगर इसकी जगह मुझे जबरदस्ती बोला जाए कि आपने स्कूल आना ही आना है, आपको कोई पे नहीं मिलेगी, बस आपने काम करना है, तो डेफिनेटली आई विल पास द टाइम. तो मैं टाइम पास करूंगी, तो मैं 100% नहीं दूंगी. क्लियर. कोई भी नहीं करता ऐसा. लेकिन रोमन का मैंने बताया वहां प्रोफेशन था कि आप आर्मी को ज्वाइन कर सकते हो, उसके बदले में आपको सैलरी मिलती थी और 25 साल की आप जॉब कर सकते हो, जिसकी वजह से ये उनकी यूनिक फीचर थी रोमन एम्पायर की जो आर्मी है. तो लोग अपनी इच्छा से आते थे. देयर वाज नो कंपल्शन, नो फोर्सफुली रिक्रूटमेंट. द आर्मी, तो ऐसे में हर कोई अपना प्रोफेशन चुनना चाहता है, बच्चे आर्मी में जाते हैं. The army was the largest single organized body in the empire. Means 6 lakh. 4th century तक कितने लोग काम करते थे आर्मी में रोमन एम्पायर की? 4th century तक 6 लाख लोग काम करते थे. क्लियर. इतनी बड़ी आर्मी थी रोमन एम्पायर की. इज इट क्लियर बेटे? एंड इट सर्टनली हैड द पावर टू डिटरमिन द फेट ऑफ एम्परर. और ये भी देखो, ये एम्परर की किस्मत को भी निर्धारित करते थे. मीन जो आर्मी, अक्सर वहां क्या होता था, म्यूटनी हो जाती थी. म्यूटनी मीन विद्रोह हो जाता था, आर्मी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती थी.
कोई राजा के पक्ष में होती थी, कोई राजा के विरोध में होती। जो राजा के पक्ष में और जीत गई वो राजा को गद्दी पे बिठा देती थी, या फिर जो विरोध में अगर वो जीत गई तो वो राजा को गद्दी से उतार देती थी। मीन राजा की जो डेस्टिनी है दैट इज डिटरमिन्ड बाय द आर्मी। आर्मी वाज प्लेइंग अ मेजर रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ किंग। राजा को बनाने में आर्मी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। द सोल्जर वुड कॉन्स्टेंटली एजिटेट, मैंने आपको बताया सोल्जर जो थे वो कंटिन्यूसली क्या करते, एजिटेट करते थे, आंदोलन करते थे फॉर बेटर वेजेस। किस चीज के लिए? कि हमें अच्छी वेजेस चाहिए, अच्छी सर्विस कंडीशन चाहिए। जब भी उनके साथ कुछ अन्याय होता था देन दे वेंट ऑन स्ट्राइक, वो स्ट्राइक पे चले जाते थे, आंदोलन पे चले जाते थे, राजा को फोर्स करते थे कि हमें बेटर वेजेस चाहिए। These agitations often took the form of mutinies। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो विद्रोह हो जाता था अक्सर आर्मी में। If the soldiers felt let down by their generals or even the emperor, विद्रोह उस समय होता था जब सोल्जर्स को लगता था कि जो हमारे जर्नल्स हैं वो हमारी हेल्प नहीं कर रहे, या हमारा राजा हमारी हेल्प नहीं कर रहा, हमारा बादशाह हमारे साथ गलत कर रहा है। दैट टाइम म्यूटनी हो जाती थी। म्यूटनीज मीन विद्रोह। क्लियर? अगेन आर पिक्चर ऑफ द रोमन army depends largely on the way they were portrayed by the historians with sanitarian sympathy। बेटे हमें फिर दोबारा याद रखना पड़ेगा ये बात कि जो आर्मी के बारे में हमें सूचना मिल रही है, इंफॉर्मेशन जानकारी मिल रही है, ये उन लोगों ने दी है, उन इतिहासकारों ने दी है जो सेनेट के मेंबरों के साथ हमदर्दी रखते थे, जो सेनेट के मेंबरों के मित्र थे। नेचुरली जैसे सेनेट कहेगा, सेनेट की और याद रखना जो सेनेट है और आर्मी है इसकी आपस में दुश्मनी थी। क्लियर? इनकी आपस में कभी नहीं बनती थी। रीजन क्या? आर्मी भी पावरफुल थी, सेनेट भी, तो पावर में बने रहने के लिए हमेशा वहां खिंचोतान रहती थी। क्लियर? सेनेट वाले नफरत करते थे आर्मी को। द सेनेट, ये साफ साफ लिखा पे, हेटेड एंड फियर्ड द आर्मी, वो नफरत करते थे आर्मी को और आर्मी से डरते भी थे क्योंकि आर्मी के पास वेपन होते थे। बिकॉज इट वॉज अ सोर्स ऑफ ऑफन अनप्रडिक्टेबल वायलेंस। ये देखिए क्यों? क्योंकि आर्मी क्या है, एक अनप्रडिक्टेबल वायलेंस का सोर्स है। मीन्स ऐसा ही हिंसा पैदा कर सकती है आर्मी, इसके बारे में हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते। क्या पता है आर्मी कब विद्रोह हो जाए, शांति बनी जाए। Nobody knows about it, especially in the tense conditions of 3rd century when government was forced to tax more heavily to pay for its mounting military expenditures। खास तौर पर 3rd सेंचुरी में जब राजा ने वेल्दी लोगों के ऊपर टैक्स इम्पोज किए थे, जो इंक्रीज कर दिए। क्यों? क्योंकि उसको पैसा चाहिए था। जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है, मिलिट्री के खर्चे को उठाने के लिए ही नीड मोर टैक्सेस। दैट्स व्हाई सेनेट हेटेड द आर्मी एंड फियर्ड फ्रॉम आर्मी। क्यों? क्योंकि उनको टैक्स देना अच्छा नहीं लग रहा था, उनको टैक्स देना पड़ रहा था, राजा उनसे ज्यादा टैक्स मांग रहा था आर्मी की हेल्प करने के लिए, जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति है अपना पैसा देना नहीं चाहता किसी को। हम भी लोग, इंडिया के लोग टैक्स चोर हैं, टैक्स नहीं फिल करते सरकार का। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं, 2-4 को छोड़कर, जो टैक्स चोरी ना करता हो। तो हम अपनी रिटर्न भरते हैं, कमाते 10 लाख, साल का बताते हैं 5 लाख, तो क्या है 5 लाख का हमने टैक्स चोरी किया। हम तो छोटे लोग हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े पॉलिटिकल फिगर्स हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो ईमानदारी से टैक्स फिल नहीं करते, ऐसे ही और टैक्स को चोरी करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही सेनेट वाले भी करते थे उस समय भी, इसीलिए वो आर्मी को पसंद नहीं करते। To sum up, the emperor, the aristocracy and the army were the 3 main players in the political history of empire। हमने देखा 3 players थे रोमन एम्पायर में, एक तो एम्परर, दूसरा एरिस्टोक्रेसी क्लास, और यू कैन से सेनेट। वन एंड द सेम थिंग, नथु एंड प्रेम सिंह। एरिस्टोक्रेसी और सेनेट सेम ही है, एक ही चीज के 2 नाम है। क्लियर? जो वेल्दी मेंबर्स है उनको एरिस्टोक्रेसी भी बोल सकते हो आप, सेनेट भी बोल सकते हो। क्लियर?
and third player is army. Clear? The success of individual emperors depend on their control of the army. किसी भी राजा की जो निजी सफलता है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती थी कि उसका आर्मी के ऊपर कितना कंट्रोल है। क्लियर? कंट्रोल ऑफ द आर्मी। अगर आर्मी उसके हाथ में है तो वो सक्सेसफुल है, अगर आर्मी उसके अगेंस्ट है तो वो हार गया। And when the armies were divided, the results usually was civil war. मैंने पहले ही बताया जब आर्मी टू ग्रुप्स में डिवाइड होती तो वो एक दूसरे के साथ लड़ते थे, तो ऐसे में हमें पता जब हम आपस में लड़ेंगे तो क्या कहलाएगा वो सिविल वार। तो ऐसे में सिविल वार होता था। सिविल वार में अपना ही नुकसान होता है, हम अपनों को ही मारते हैं। क्लियर? एक्सेप्ट फॉर वन नोटोरियस ईयर, एक बदनाम ईरा है, साल है, वो कौन सा है? 69 CE। इसमें बहुत सी उथल पुथल हुई इस साल में, इसीलिए इसका नेम नोटोरियस, शरारती ईयर कहा जाता है इसको। क्लियर? व्हेन 4 एम्परर माउंटेड द थ्रोन इन क्विक सक्सेशन, जो 4 राजा थे जो गद्दी पर बैठना चाहते थे। द फर्स्ट 2 सेंचुरीज वर ऑन द होल फ्री फ्रॉम सिविल वार, पहले 2 सेंचुरीज में कोई वार नहीं हुआ। क्लियर? लेकिन इस समय आपस में वार होगा, सिविल वार होगा। क्लियर? लोग आपस में लड़ेंगे। तो the first 2 centuries were on the whole free from civil war and in the this sense relatively stable, means वहां शांति बनी रही, स्टेबल रही। क्लियर बेटे? Succession to the throne was based on as far as possible on family descent, फैमिली के डिसेंट के आधार पर राजा को गद्दी दी जाती थी। मीन राजा का पुत्र ही अक्सर राजा बनता था, चाहे वो अडॉप्ट चाहे नेचुरल सन है। क्लियर? जो बादशाह बैठा है गद्दी पे, जैसे जूलियस सीजर था, जूलियस सीजर ने जो है अगस्टस को अडॉप्ट किया और अपना जो है सक्सेसर डिक्लेयर कर दिया, गद्दी पे बिठा दिया। तो ये एक फैमिली डिसेंट हो गया। मैं और ये अडॉप्टेड भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है। क्लियर? either natural or adaptive and even the army was strongly wedded to this principle, और आर्मी भी ऐसे ही काम करती थी, इसी प्रिंसिपल के साथ थी कि ज्यादातर जिसका फादर आर्मी में उसका बेटा भी आर्मी में जाता है। अब भी है ये, तो जिसका फादर आर्मी में उसका बेटा भी आर्मी में जाता है। ओके बेटे? हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल टेब्रिस, ये रहा टेबरस द सेकंड इन द लॉन्ग लाइन ऑफ रोमन एम्पायर वाज नॉट द नेचुरल सन ऑफ अगस्टस, ये अगस्टस का नेचुरल सन नहीं था, द रूलर हु फाउंडेड द प्रिंसिपेट, बट अगस्टस अडॉप्टेड हिम टू इंश्योर अ स्मूथ ट्रांजिशन। अगस्टस ने उसको गोद लिया था, ये उसका गोद लिया पुत्र था, ताकि आसानी से जो है ये पावर को ट्रांसफॉर्म किया जाए। एक्सटर्नल वारफेयर वाज आल्सो मच लेस कॉमन इन द फर्स्ट 2 सेंचुरीज, पहली 2 सेंचुरीज में विदेशी हमले भी बहुत कम रहे हैं, बाहर वालों ने भी देश के ऊपर, इस एम्पायर के ऊपर कम हमले किए हैं। द एम्पायर इनहेरिटेड बाय Tiberius from Augustus was already so vast that further expansion was felt to be unnecessary. जब टिब्रस राजा बना तो उसको अपने पिता से ही विरासत में बहुत बड़ा राज मिला था, उसने आगे और कोई जिद प्राप्त करने को अननेसेसरी समझा, कोई जरूरत ही नहीं थी अपने राज को एक्सटेंड करने की, ऑलरेडी वो बहुत वास्ट था इन साइज। इन फैक्ट द अगस्टस एज इज रिमेम्बर्ड फॉर द पीस, इसीलिए अगस्टस एज को हम शांति के लिए याद करते हैं। ushered in after decades of internal strife and centuries of military conquest, लेकिन बाद में क्या शुरू हो गया, कई डेकेड्स के बाद यहाँ अंदरूनी झगड़े हो गए और मिलिट्री ने जीतें प्राप्त करनी शुरू कर दी, मीन लड़ाई झगड़े का समय शुरू हो गया। द ओनली मेजर कैंपिंग ऑफ एक्सपेंशन इन द अर्ली एम्पायर वाज ट्राजन, अ फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन ऑफ टेरिटरी अक्रॉस द अजरिप। सिर्फ जो एक बड़ी मुहिम हुई है, बड़ी लड़ाई हुई है राज का विस्तार करने के लिए, वो ट्रेजन की फ्रूटलेस कोशिश हुई है, जो उसने इजिप्ट के इर्द गिर्द एरिया को जीत लिया था, लैंड को जीत लिया था।
कब? इन द ईयर 113 टू 70 सी, अमेंडेड बाय हिज सक्सेसर। क्लियर? जो उसके सक्सेसर ने बाद में छोड़ दी। तो ये सिविल वार है। सिविल वार का बता रखा कीवर्ड में, सिविल वार रेफर्स टू द आर्म्ड स्ट्रगल फॉर पावर विद इन द सेम कंट्री। जब उसी देश के लोग आपस में वेपन लेकर एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई करते हैं। दो अक्सर दो ग्रुप होते हैं यहाँ। इन कंट्रास्ट टू कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, ये जो है कन्फ्लिक्ट डिफरेंट कंट्रीज के नहीं अंदर होता, ये सेम कंट्री के लोग आपस में लड़ते हैं। क्लियर बेटे?